So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Mahi. Well, I just gave my JEE January attempt exam on 21st Jan. First shift. First day, first show. We all know how it went. So here I am making my April attempt strategy. Well, before that, many of you were asking me, and many of you who didn't would probably be thinking that why is a dropper who had 3 years for preparing for JEE giving up so early? Is she not confident? Well, that's a valid question actually. So yeah, मैं dropper हूँ but मैं general category से भी हूँ. That's why जो minimum percentile है वो 94 percentile है. We all know that. So आप समझ गए होंगे that instead of taking unnecessary risks, why not be already prepared, you know? So that's why here I am at 2 AM making my April attempt strategy. So welcome to day 1 of me documenting my April attempt journey. And yes, boards recommendations भी होंगे because I know boards को लेके काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा confused हैं because मेरे को DMs भी आ रहे हैं बहुत सारे, जो कि मेरे को लगता है कि मेरे इतने followers नहीं है जितने मेरे को DMs आ जाते हैं, but still I'll try to help and मैं recommendations देती रहूँगी साथ में हर videos में. इस वीडियो में भी होंगे recommendations and also guess my boards percentage and comment below, and I like the comment that's the closest to my percentage. Okay, so let's not waste any more time and start making our April attempt strategy. So I'm not just going to give you my strategy that I'm making for myself, but I will tell you how you can make a strategy for yourself. So grab a notebook and a pen and write the heading for the motivation. So I'm going to make 3 lists. Firstly, high weightage chapters, जो कि हम सबके सेम ही होंगे obviously. Next, chapters that I am strong in, or you can just write strong chapters and weak chapters. Next, we are going to write weak chapters. So after dividing these sections, जो मेरे weak chapters होंगे मैं उनको ज़्यादा focus करूँगी और मैं खुद को डेडलाइन दे दूँगी, जैसे कि for example फेब की एंडिंग तक जो है मेरे weak chapters सारे strong chapters की लिस्ट में आ जाने चाहिए and वो मतलब कि high weighted chapters में सारे कवर अप हो जाने चाहिए, मतलब उनकी theory रिवाइज हो जानी चाहिए, concepts रिवाइज हो जाने चाहिए. तो उसके बाद जो है मैं PYQs क्वेश्चन सॉल्विंग एंड मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँगी because this is all about not making the same mistake again. तो मैं मॉक टेस्ट पे लास्ट टाइम जो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई थी, so now I will focus on that too. So yeah, मेरे हिसाब से जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं, उनमें मोस्टली जो ये आपको चैप्टर्स ही बताए जाएंगे कि आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और वो आपको डेडलाइन बताएंगे कि आपको इस डेडलाइन तक आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए. बट उसका कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज सबका स्टडी मेथड जो है वो डिफरेंट होता है, सबको अपने स्टडी मेथड के हिसाब से ही अपने को डेडलाइन देनी चाहिए. ज़्यादा दूर भी नहीं ऑब्वियसली कि आपका पेपर ही आ जाए, बट या कि जैसे किसी के बोर्ड्स हैं और कि कोई चलो ड्रॉपर भी है बट उसको कोई और काम है, सो अपने आप को अपने हिसाब से कोई डेडलाइन देके, बट उस डेडलाइन पे आपको ये है कि आपको कंप्लीट करना है, आप उसको आगे नहीं कर सकते. अगर ऐसा हो भी गया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो. दैट्स जस्ट माई सजेशन and it's all about me documenting how I am doing and it might be helpful for you too. So yeah, that's the strategy that I'm going to follow for myself and you guys will watch me follow my strategy. I hope so. So let's move forward to the board section. So hello juniors, बोर्ड्स हमारे लिए तो खत्म हो चुके हैं बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देखो कि मैंने बहुत से मेरे फ्रेंड्स देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से देखे हैं जो कि बोर्ड्स के ऊपर जो है सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो बोर्ड्स के ऊपर जो है फोकस ही नहीं करते हैं, मतलब कि उनको लगता है कि JEE कर लें, बट JEE जो है कोई भी अगर अपने 99% भी आ जाएंगे ना 100% भी आ जाएंगे तब भी वो मैटर नहीं करेगा अगर आप 75% परसेंटेज जो है क्रॉस नहीं करेंगे, राइट. ये भी आप अभी जो है हमें बहुत ज़्यादा ईजी लगता है कि अगर हम JEE कर सकते हैं तो वो तो क्लियर कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, यस पोटेंशियल है तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट उसमें 5 चैप्टर्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स एंड ऑल दैट थिंग्स. हम PCM में अगर ये भी आए 100 देखो
ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल तो मतलब हम नहीं देख के सोच के चल सकते कि आपके 100 मार्क्स उसमें आ जाएंगे, 100 मार्क्स आ जाएंगे आपके, तब भी आपका पॉसिबल नहीं है कि आप 75% आ जाए, राइट। सो यू नीड मार्क्स इन इंग्लिश एंड कहीं तो फाइन आर्ट्स एंड ऑनलाइन सब्जेक्ट्स भी होते हैं। फिजिकल एजुकेशन बेस्ट होता है बिकॉज उसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। आप एग्जाम से अगर 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी पढ़ेंगे ना तो आप आराम से पेपर जो है पास कर लेंगे इजीली। बट अगर किसी ने फिजिकल एजुकेशन नहीं लिया तो लैंग्वेजेस हैं उनके पास, है ना, तो इट्स रियली मतलब वो डिफिकल्ट हो जाता है ऑब्वियसली ज़्यादा। सो पहले तो बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो बोर्ड्स के लिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए तो उसको ज़्यादा टाइम दो, पहले बोर्ड्स क्लियर कर लो, मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। अभी जैसे कि 26 जा रहे हैं तो कोई ऐसे कि रख लो अपनी कोई डेट, जैसे कि फिर आई थिंक इफ़ यू रियली स्टडी यू जस्ट नीड 1 वीक। 95% चाहिए तो 94 उसके लिए नहीं कह रही हूँ, 75% चाहिए तो यू जस्ट नीड 1 वीक, जिसमें कि अगर आप JEE एस्पिरेंट हो तो आप उसके लिए वो कंप्लीट कर सकते हैं। एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी कि आपको कौन से रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करने हैं। बाकी जस्ट NCERT से आपका बोर्ड्स जो वो क्लियर हो जाता है। NCERT इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड्स। अगेन इट्स जस्ट माई सजेशन, सब लोग सेम नहीं होते हैं, सबका स्टडी पैटर्न डिफरेंट होते हैं। सो इट्स जस्ट माई ऑब्जर्वेशन ऑन स्टूडेंट्स, ऑन माई फ्रेंड्स एंड ऑन मी, सो इट्स जस्ट माई रिकमेंडेशन। आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं बोर्ड्स के लिए कुछ हेल्पफुल रिसोर्सेज वगैरह भी मेंशन कर दूँगी कि आपको कौन से चैनल से कौन से मतलब फ्री ऐसे चैनल हैं उससे पढ़ सकते हो। एंड बाकी मैं जो PDF में आपको रिसोर्सेज जो आपको इजीली मिल जाएंगी। सो या, थैंक यू सो मच।